साथियों, आज 23 अगस्त है। आज 23 अगस्त है। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान-3 ने साउथ पोल पर स्मूथ लैंडिंग कर इतिहास रचा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय स्पेस डे के रूप में मनाने की घोषणा की है। आज इस अवसर पर मंत्री जी की उपस्थिति में बंदरगाह में खड़े सारे जहाज़ हॉर्न बजाकर देश के स्पेस वैज्ञानिकों का अभिवादन करेंगे। हम मंत्री जी की उपस्थिति में इस हॉकिंग सैल्यूटेशन का आगाज़ करेंगे। साथियों, मुंबई पोर्ट द्वारा आयोजित आज के इस समारोह में आप सबका स्वागत। आज इस विशेष अवसर पर हमारे साथ मौजूद हैं ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज श्री सर्बानंद सोनोवाल जी। हम उनका एक बार ज़ोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। यह हमारी संस्कृति रही है, हमारी परंपरा रही है कि हर शुभ कार्य की शुरुआत हम दीप जलाकर करते हैं। इस परंपरा का अनुसरण करते हुए हम अनुरोध करते हैं माननीय मंत्री जी से कि वे दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। हम दीपक की रोशनी को नमन करते हैं जो शुभता, समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य, प्रचुर धन और संपत्ति प्रदान कर शत्रु भावना का विनाश करती है। और अब हम अनुरोध करेंगे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री राजीव जलोटा जी से कि वे माननीय मंत्री जी का सम्मान चिन्ह देकर स्वागत करें। तत्पश्चात हम चीफ कमिश्नर ऑफ कस्टम्स श्री नीतीश कुमार सिन्हा जी से निवेदन करते हैं कि वे मंत्री जी का सम्मान चिन्ह देकर स्वागत करें। और अब मैं अनुरोध करूंगा मुंबई पोर्ट के सचिव से कि वे चीफ कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम्स और एडिशनल सेक्रेटरी जी का सम्मान चिन्ह देकर स्वागत करें। और अब हम निवेदन करेंगे मुंबई पोर्ट के अध्यक्ष जी से कि वे इस अवसर पर स्वागत भाषण करें। Our Honorable Minister of Port, Shipping and Waterways, Shri Sarbanand Sonowal, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is with immense pride and pleasure that I extend a heartfelt welcome to you all today. On behalf of the Mumbai Port Authority, I am truly honored to have the presence of our esteemed Honorable Minister of Ports, Shipping and Waterways, Shri Sarbanand Sonowal. Sir, your visit to Mumbai Port is a momentous occasion which provides us with the invaluable opportunity to showcase our plans
for realizing the exhortation of our Honorable Prime Minister of a Viksit Bharat under the Maritime Amrit Kal Vision 2047. Mumbai Port, with its rich history and strategic significance, stands as a testament to the enduring strength and resilience of India's maritime sector. It has significantly contributed to national security and defense interests, energy security of the western region, as well as the development of Maharashtra and Mumbai metropolitan region. It is also providing an all-round ecosystem to the Indian maritime sector through ship repair and other marine services. We are committed to advancing our port's capabilities and reinforcing our roles as a vital conduit of international trade. To stay on top of the global maritime trends, Mumbai Port is focusing strongly on decarbonization and digitalization while transforming itself into India's premier cruise port. Last week, we became the first port in India to bunker BPCL's biofuel blended HFHSD. Not just that, we seek to build institutions for capacity building and research for the growing maritime sector in India. The projects and initiatives being launched today will give you a flavor of this exciting new direction that the port is taking while staying deeply grounded in its fundamentals as a port of call and a base for business and industry, while preserving the rich culture and heritage of our area. Honorable Minister Shri Sarbanand Sonowal, your leadership has been instrumental in the progress of India's maritime sector. Under your renewed stewardship in this new term of government, we will continue to achieve new milestones and address the evolving needs of our industry. Your presence here today allows us to launch key projects and initiatives in the interest of the Indian economy and the development goals of Maharashtra, specifically Mumbai. We seek your guidance on key matters that will shape the future of Mumbai Port and the broader maritime sector. Once again, Honorable Minister, we are deeply grateful for your presence here today in this August gathering to launch key initiatives and projects for a vibrant future of Mumbai Port. Thank you. धन्यवाद सर। और अब हम निवेदन करते हैं चीफ कमिश्नर ऑफ कस्टम्स श्री नीतीश कुमार सिन्हा जी से कि वे इस मौके पर दो शब्द कहें। Honorable Union Cabinet Minister Shri Sarbanand Sonowal ji, Chairman Mumbai Port Authority Shri Rajiv Jalota ji, distinguished guests, my dear colleagues and ladies and gentlemen. On behalf of the Mumbai Customs fraternity, it gives me immense pleasure and honor to welcome the Honorable Minister to Mumbai Custom House today. I also congratulate the Mumbai Port Authority for the launch of their various projects and initiatives, as well as the laying of the foundation stone by the Honorable Minister. Sir, customs have evolved into proactive facilitators of trade, whereas they were traditionally seen as a regulatory authority. Customs now ensures that the flow of goods across our borders is seamless and efficient. Customs has been implementing initiatives like faceless assessment, direct port delivery, single window interface for facilitating trade by all agencies, e-Sanchit. These initiatives have ushered in a new era of paperless operations. I am also happy to inform that very soon, customs officers at Mumbai Port will start using handheld tablets called iStab for examination of cargo, etc. This is going to add tremendous speed and efficiency to the cargo clearance process. In this common endeavor, sir, the Mumbai Customs and the port authorities are instrumental in ensuring that the port operates efficiently, and we are working together in the spirit of mutual cooperation. Together, we are taking all efforts to reduce the time it takes for the goods to move in and out of our port, cut down logistics costs, and ensure the speedy throughput of the import and export cargo. Our efforts are aimed at modernizing the port, simplifying customs procedures, and ensuring compliance with the international standards. These also contribute to our national security by preventing illegal trade and ensuring that only the authorized goods are moving through our ports. Sir, Mumbai Customs has been instrumental in the efficient clearance of international cruise vehicles and the facilitation of international tourists. Nearly 43 cruise vehicles have docked at Mumbai Port since January 2024. And notably, in a specific case, Customs has facilitated the clearance of about 4,000 passengers arriving from a vessel within an exceptional time frame of less than 3 hours. This achievement was made possible through the deployment of over 80 customs officers for the job, sir.
Mumbai Customs has some unique specialized segment of cargo handling like liquid bulk cargo, over-dimensional cargo, etc., sir, where customs has been working to facilitate the speedy clearances. We are also committed to supporting the Mumbai port authorities in maximizing their installed capacity. We are also offering, sir, comprehensive support to the shipping industry to enhance operational efficiencies by way of granting permission for in-stream discharge, 24/7 boarding of the vessels at stream, etc., sir. Sir, at the end, sir, I would like to thank the Honorable Minister once again for his leadership and visit and vision and his visit to the Mumbai Custom House. We assure you, sir, that together, both Mumbai Port Authorities and Customs will ensure that our nation ports continue to be symbols of progress, efficiency, innovation, and lead us to accomplish our mission of Viksit Bharat by the year 2047. Thank you. साथियों, माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में व उनके मार्गदर्शन में समय के साथ चलते बदलते इस ऐतिहासिक मुंबई पोर्ट ने आधुनिक टेक्नोलॉजी का सृजन करते हुए अपनी कार्यप्रणाली में सुधार व विकास के कई कदम उठाए हैं। आज मुंबई पोर्ट माननीय मंत्री जी की उपस्थिति में उनके कर कमलों से 3rd केमिकल बर्थ पर टेस्ट ऑपरेशन की शुरुआत व जवाहर द्वीप पर शोर प्रोटेक्शन एंड रिक्लेमेशन की शुरुआत कर रहा है तथा उद्घाटन कर रहा है अपने मरीन ऑयल टर्मिनल पर स्काडा पीएलसी के ऑटोमेशन का, आईपोर्टमैन सिस्टम का, ई-स्टेट ऑपरेशन मैनेजमेंट सिस्टम का तथा मुंबई पोर्ट सस्टेनेबिलिटी फाउंडेशन का। हम माननीय मंत्री जी से निवेदन करते हैं कि वे इन प्रकल्पों की शुरुआत व उद्घाटन बटन दबाकर करें। माननीय मंत्री जी की दूरदृष्टि से, उनके विजन से प्रभावित होकर मुंबई पोर्ट ने पर्यावरण से संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से मुंबई पोर्ट सस्टेनेबिलिटी फाउंडेशन की स्थापना की है। हम अनुरोध करेंगे मंत्री जी से कि वे मुंबई पोर्ट सस्टेनेबिलिटी ब्रोशर का विमोचन करें। साथ ही माननीय मंत्री जी के निर्देशानुसार मुंबई पोर्ट ने हर वर्ष 26 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक कम्युनिटी आउटरीच के तहत पोर्ट को खुला रखने का निर्णय लिया है। सर, आपके निर्देशों के अनुसार मुंबई पोर्ट ने हर वर्ष 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक कम्युनिटी आउटरीच के तहत पोर्ट को खुला रखने का निर्णय लिया है, जिससे सर्वसामान्य व्यक्ति पोर्ट के कार्यकलापों को देख व समझ सकेगा। इस दौरान पोर्ट में हेरिटेज टूर का प्रयोजन भी किया है ताकि आम जनता पोर्ट के सुनहरे इतिहास से परिचित हो सके। मंत्री जी इस प्रयास के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, अपितु हम उनके इस मार्गदर्शन के लिए उनके कृतज्ञ हैं। साथ ही माननीय मंत्री जी के प्रोत्साहन से मुंबई पोर्ट ने अपनी वेबसाइट को नए सिरे से अपग्रेड करते हुए उसमें मुंबई मंथन नाम के एक AI बेस्ड चैटबॉट का समावेश किया है, जिसके ज़रिए पोर्ट से संबंधित जानकारी आसानी से व तुरंत हासिल की जा सकेगी। इसके साथ देश के मेजर पोर्ट्स में वेबसाइट पर यह सुविधा प्रदान करने वाला मुंबई पोर्ट एक अग्रणी पोर्ट बन चुका है।
हम मंत्री जी की उपस्थिति में उनके हाथों इस चैटबॉट युक्त वेबसाइट को आज लॉन्च कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि वे मंत्री जी से कि वे पोर्ट की वेबसाइट लॉन्च करें व चैटबॉट का जायजा लें। चैटबॉट में पूछे गए प्रश्नों का वेबसाइट तुरंत जवाब देगी। ये एक आसान सुविधा उपलब्ध कराई गई है जिसके ज़रिए पोर्ट से संबंधित सारी जानकारी हासिल की जा सकेगी। ये सुविधा तीनों भाषाओं में उपलब्ध है, अंग्रेज़ी, हिंदी व मराठी। साथियों, मंत्री जी के नेतृत्व में तैयार किए गए मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 व अमृतकाल विजन 2047 के तहत मुंबई को क्रूज़, यॉट व सेलिंग का केंद्र बनाया जाना तय हुआ है। यॉटिंग से जुड़ी सारी सुविधाओं को एक जगह केंद्रित कर विश्व स्तरीय बनाने की दृष्टि से मुंबई पोर्ट ने 5.5 करोड़ की लागत से 2500 स्क्वायर मीटर के क्षेत्र में ओलंपिक लेवल की सेलिंग सुविधा बनाने की योजना बनाई है। यॉटिंग व सेलिंग से जुड़े मशहूर होमी मोतीवाला जी व गौतम दत्ता जी इस कार्य में मुंबई पोर्ट के साथ रहेंगे। माननीय मंत्री जी की मौजूदगी में हम मुंबई पोर्ट के इस नए इनिशिएटिव की आज यहाँ घोषणा करते हैं। हम मंच पर आमंत्रित करेंगे होमी मोतीवाला जी व गौतम दत्ता जी को व निवेदन करेंगे मंत्री जी से कि वे इन्हें सम्मान चिन्ह प्रदान करें। जैसा कि आप जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज पर्यावरण का रखरखाव एक प्राथमिकता बन चुका है। मंत्री जी के मार्गदर्शन में इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए मुंबई पोर्ट ने सस्टेनेबिलिटी फाउंडेशन व हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के साथ ग्रीन फ्यूल इकोसिस्टम के संवर्धन के लिए MOU किया है। हम आमंत्रित करेंगे मुंबई पोर्ट सस्टेनेबिलिटी फाउंडेशन व HPCL के प्रतिनिधियों को कि वे माननीय मंत्री जी की उपस्थिति में MOU का हस्तांतरण करें। इसके अलावा मुंबई पोर्ट ने DNV और सस्टेनेबिलिटी फाउंडेशन के साथ डीकार्बोनाइजेशन और इमिशन मैनेजमेंट के लिए भी MOU साइन किया है। हम आमंत्रित करेंगे DNV सस्टेनेबिलिटी फाउंडेशन के अधिकारियों को कि वे MOU का आदान प्रदान करें। साथ ही मुंबई पोर्ट ने पर्यटन सुरक्षा की दृष्टि से गेटवे ऑफ इंडिया की जेटी नंबर 5 पर RBYC के साथ एक फ्लोटिंग पॉन्टून लगाने के लिए MOU किया है। मैं मुंबई पोर्ट व RBYC के पदाधिकारियों से, रॉयल बॉम्बे यॉट क्लब के पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि वे MOU का आदान प्रदान करें।
इसी तरह मुंबई पोर्ट ने आरपीजी फाउंडेशन के साथ बलार्ड ईस्टेट के इस परिसर के सुशोभीकरण के लिए भी एक एमओयू किया है। हम अनुरोध करेंगे आरपीजी फाउंडेशन और मुंबई पोर्ट के अधिकारियों से कि वे इस एमओयू का हस्तांतरण करें। धन्यवाद। साथियों, मंत्री जी के विजन के अनुरूप राष्ट्रीय सुरक्षा व एनर्जी सिक्योरिटी को गति प्रदान करने के उद्देश्य से मुंबई पोर्ट ने भूमि के 6 प्लॉट्स का लीज पर आवंटन किया है। इसमें 2 प्लॉट्स सीएनजी के लिए महानगर गैस लिमिटेड को, 2 प्लॉट्स लिक्विड बल्क स्टोरेज के लिए एजिस लॉजिस्टिक्स को, 1 प्लॉट मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड को और साथ ही मझगांव डॉक लिमिटेड की 12 लीज़ों का नूतनीकरण भी किया गया है और 1 प्लॉट वाटर एरिया सहित ओएनजीसी को दिया गया है। हम निवेदन करेंगे एमजीएल के प्रतिनिधियों को कि वे मंत्री जी के कर कमलों से प्लॉट का चार्ज सर्टिफिकेट प्राप्त करें। इसके पश्चात एजिस लॉजिस्टिक्स के पदाधिकारी माननीय मंत्री जी के हाथों चार्ज सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे। तत्पश्चात माझगांव डॉक्स शिप बिल्डर्स लिमिटेड के पदाधिकारी और अब हम निवेदन करेंगे ओएनजीसी के प्रतिनिधियों से कि वे माननीय मंत्री जी से चार्ज सर्टिफिकेट प्राप्त करें। धन्यवाद। साथियों, प्रधानमंत्री कार्यालय के मार्गदर्शन व मंत्री जी के प्रोत्साहन से विजन 2030 और अमृतकाल 2047 के तहत मुंबई पोर्ट ने अपनी ज़मीन व समुद्री किनारे का इस्तेमाल पर्यटन विकास से जुड़ी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित किया है। इसके अंतर्गत 34 प्रकल्पों की संकल्पना की गई है। इनमें से कुछ पूरे हो चुके हैं, कुछ पर काम शुरू है और कुछ पर काम शुरू होने जा रहा है। हम निवेदन करते हैं माननीय मंत्री जी से कि वे अपने कर कमलों से इन प्रकल्पों के संकलन का
ब्रोशर का विमोचन करें। लाइट हाउस टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, हेरिटेज, ओशन हार्बर क्रूज, पैसेंजर वाटर ट्रांसपोर्ट, इकोलॉजिकल टूरिज्म, वाटर फ्रंट टूरिज्म इत्यादि इन प्रकल्पों के मुख्य केंद्र हैं। धन्यवाद। साथियों, सीवीसी के निर्देशानुसार इस वर्ष मुंबई पोर्ट 16 अगस्त से 15 नवंबर तक प्रिवेंटिव अवेयरनेस प्रोग्राम मना रहा है। इस वर्ष विजिलेंस की थीम है सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि। इस दौरान मुंबई पोर्ट के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने पब्लिक प्रोक्योरमेंट पर एक हैंडबुक भी जो इस तरह है जारी की है। माननीय मंत्री जी की मौजूदगी से इन प्रयासों को निश्चित ही गति मिलेगी। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम अनुरोध करते हैं माननीय मंत्री महोदय से कि वे इस अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करते हुए आने वाले समय के लिए हमें दिशा निर्देश दें। नमस्कार। आज की मुंबई पोर्ट अथॉरिटी की कार्यक्रम में आज उपस्थित हमारे चेयरपर्सन राजीव जलोटा जी और एडिशनल सेक्रेटरी पोर्ट शिपिंग वाटरवेज मंत्रालय की राजेश कुमार सिन्हा जी, आदेश टीटामारी जी, डेप्यूटी चेयरपर्सन मुंबई पोर्ट, नीतीश कुमार सिन्हा जी, चीफ कमिश्नर ऑफ कस्टम्स मुंबई, राजन चौधरी जी, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम्स जनरल, भूषण कुमार जी है क्या? नहीं, भूषण कुमार जी, और मनोज कुमार श्यामवाल जी, मैनेजिंग डायरेक्टर IPRCL, Mr. Biju Jose, Dr. M. Shashi Kumar, representative of SPCL, DNV, RBYC, RPG Foundation, MGL, Aegis, ONGC, presidents of various associations, Mansa, Albia, BC, senior official of Customs and Mumbai Port Authority, and ladies and gentlemen, and my media friends. Today you have witnessed
many more program of Mumbai Port Authority, inauguration and launching, and also the MOU signed with various organizations, my Mumbai Port Authority. This gives you a clear indication how Mumbai Port Authority is working and how they have been progressing as per the demand of the present day situation. Because in this era of competition, we will have to compete with the best of the best. So among the best, we will have to prove that we are the best. With that objective, they have been creating the ecosystem, and I believe Mumbai, being the commercial hub, commercial capital of the country, always is a place where from the inspiration and also the encouragement received by the people living across the country. So I believe Mumbai has a big role to play in making India a Atmanirbhar Bharat. By 2047, under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, we have set our destination very much distinctive, that we'll have to make India one of the most important leading developed country in the world, and also to make India a self-reliant nation. To achieve that goal, every ministry, every department, every citizen will have to contribute in a sizable manner for the cause of the country, because this country is full of potentialities, possibilities and prosperities. संपदा और संभावना और शक्ति से भरा हुआ है ये हिंदुस्तान. अब हमें इस हिंदुस्तान को दुनिया के सबसे मजबूत विकसित राष्ट्र के हिसाब से खड़ा करना होगा. और पिछले 10 साल का जो अनुभव देशवासियों को मिला है, और वो भी हमारे देश के आदर्शवादी नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सफलता हमने प्राप्त की है, exemplary transformation in all the sectors of human life. So I believe with this deep realization, we'll have to gear up and we'll have to surge up, because now we'll have to compete the rest part of the globe. And being a very, very important maritime nation, from my ministry and all other stakeholders, you have all been very much kind enough to extend your support and cooperation. And Bombay, with the illustrious background of more than 150 years of its exemplary contribution to the growth of the maritime industry, maritime trade. And I believe this is enough for all of us to get ourselves motivated and also surge up to contribute at best for the cause of the country with our best possible effort and with our full of potentialities. मैं इस अवसर पर ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि और भी मेरा एक कार्यक्रम है, लेकिन मैं आप लोगों को विशेष रूप से राम राम देने के लिए मैं खड़ा हुई हूँ. जलोटा जी, सही है ना? राम राम. तो देखिए, आप लोगों ने मुंबई पोर्ट का नाम रोशन किया है, और आप लोगों का सहयोग का बिना ये संभव नहीं है, क्योंकि हमारे सामुद्रिक जो व्यापार सदियों से हिंदुस्तान हमेशा आगे रहे, और हम नेतृत्व आज से 5000 साल पहले भी दे चुका है.
और बीच में शायद जो भी कारण क्यों ना हो, बीच में हम कहीं ना कहीं रुक गए, लेकिन अब परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुशल नेतृत्व ने, विजनरी लीडरशिप ने हमें फिर से जगाया है और अगले दिनों में हमें भी ये करके दिखाना है दुनिया को कि दुनिया का लीडिंग मैरीटाइम नेशन 10 बेस्ट नेशन से हम एक होंगे। सो इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे पोर्ट का मॉडर्नाइजेशन, मैकेनाइजेशन, डिजिटाइजेशन, all kind of upgradations of the port facilities to the extent of world class, so that any size of vessel can be well accommodated in any Indian ports. So to that extent, the development proceeding is going on, and also ship building, ship repair, ship recycling, and also the skill development in the maritime sector to create quality manpower in this industry from the young generation. That's why chain of this kind of institution is coming up across the country. And as you know, we are blessed with 7,500 kilometers of coastlines, and we have many more states landlocked. But now it is our responsibility to make everybody motivated and also learn about the shipping industry. Even people living on the hilltop, in the hinterland areas, everybody must be well informed, well aware of the fact that this industry is one of the most important industry, because we are considered to be the largest transporter in the country, because we handle 96% of EXIM cargo. So that reflects about our sense of responsibility and also our area of operation. We are to touch the globe. We are to cross all the oceans and all the environment, kind of climatic condition. So this is the way I believe the future generation will be motivated to develop their vision plan, to build up their future with all kind of ability, efficiency, commitment, dedication, devotion, and above all, most sincere hard work. I believe this is how this industry is working, and I hope that in the recent past, whatever remarkable kind of recognition we have received from the World Bank Performance Logistic, Performance Index data, it has already clarified our global position. And from 54 position to the 22nd in many parameters, from 115 to 19. So that way, international shipment category, turnaround time, in many parameters, India could able to position itself with lot of milestone by handling more and more cargo, and also accommodating bigger vessels, and also developing the turnaround time, which was earlier 44, now it has come down to 24. So this reflects the transformation, exemplary transformation. Why it is happening? Because of our flagship program like Sagarmala, which has brought all the kind of modernization and also change our mindset. And Honorable Prime Minister has all the time telling all the ministry, please work up and incorporate the latest technology, and also your sincere hard work and quality implementation and kind of honesty and good governance, better administration. So I believe this is how the entire team is motivated, and I am especially thankful to Jalota ji and his colleague
Titamare, they have all been working with your support to make Mumbai port very much visible in many sectors of growth. आज स्पेस डे है, नेशनल स्पेस डे। इस अवसर पर मैं सभी वैज्ञानिकों को हृदय से अभिनंदन देता हूँ। उन्होंने हिंदुस्तान का नाम अंतरिक्ष में भी रोशन किया है। ये हर हिंदुस्तानियों के लिए एक गर्व की बात है। हम गर्व महसूस करते हैं और ये संभव हुई है अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज सभी सेक्टर को अगर किसी ने साहस दिया, हिम्मत दी, मनोबल दी, दिशा और सही मार्गदर्शन दी, वो हमारे देश के आदर्शवादी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। और अब तो महाराष्ट्र में ऐसा एक पोर्ट बनने जा रहा है जलोटा जी। हम पोर्ट्स मंत्रालय की, पोर्ट शिपिंग वाटर्स वेस्ट मंत्रालय की हमारे जो एक अंश होने के नाते, हिस्सा होने के नाते हमें भी बहुत गर्व महसूस होता है कि अगले दिनों में दुनिया का एक बड़ी कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट आदवान में बनने जा रहा है, और जिसका कैपेसिटी होंगे 23.2 मिलियन ट्यूस। दुनिया के 10 टॉप 10 कंटेनर हैंडलिंग ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल के बीच में ये भी एक होंगे। तो आज मुझे लगता है कि ये हमारे लिए, सबके लिए बड़े उत्साहित एक माहौल है, और ये संभव हुई हमारे प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन से। नेतृत्व ने हमें वो शक्ति जगाया है कि इन चीज़ों पर हमें ध्यानपूर्वक, निष्ठापूर्वक अपनी कदम निश्चित रूप से उठाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसलिए ऐसे बड़े बड़े आज कार्यक्रम हिंदुस्तान बड़े हिम्मत से, साहस से और अपनी काबिलियत से उसको लागू करने जा रहा है। तो ये सफलता ने नई पीढ़ियों को भी बहुत शक्ति दी है। इसी शब्दों का साथ मैं फिर से आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने इस सभा का, इसका गरिमा बढ़ाया, और मैं सारे ऑडियंस को कहना चाहता हूँ कि इतना आप शांत बैठे हुए हैं, आपकी चेहरा में जो कमिटमेंट है, जो इन्वॉल्वमेंट है, आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। धन्यवाद सर। आपके द्वारा दिखाए गए पथ पर चलकर प्रगति करने का हम संकल्प करते हैं। और अब हम धन्यवाद प्रस्ताव के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे मुंबई पोर्ट के उपाध्यक्ष श्री आदेश तीतरमारे जी को। नमस्कार। आज का दिन मुंबई पत्तन के लिए वास्तव में ऐतिहासिक है। विद्वज्जन, जब हम सब के बीच श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, माननीय मंत्री, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार जैसे व्यक्तिमत्व वाले महानुभाव उपस्थित हो, तब कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए शब्द निश्चित रूप से कम पड़ते हैं। और उन शब्दों की गहराई वैसे ही कम पड़ती है जैसे कि मुंबई पोर्ट पर डीप ड्राफ्टेड वेसल की बर्थिंग के लिए चैनल और बर्थ पॉकेट की गहराई कम पड़ा करती थी। हम सभी पिछले लंबे समय से माननीय मंत्री महोदय आपके आगमन की प्रतीक्षा में थे। महोदय, लंबी अवधि से आपके मुंबई आगमन का था इंतज़ार। धन्य हुए जो आपने हमारा आमंत्रण किया स्वीकार। सोचा कि हम आते नई दिल्ली और करते ऑनलाइन उद्घाटन जैसा प्रकार, लेकिन आशीर्वाद मिला और देखिए खुद मुंबई आ गई सरकार। बढ़ती प्रतियोगिता, वैश्विक अनिश्चितता और क्लाइमेट चेंज की मार, इन सब के बीच भी बढ़ रहा मुंबई पोर्ट का मुनाफा और कारोबार। माननीय मंत्री जी,
क्या खूब कहा आज आपने कि भारत में है, क्या खूब कहा आज आपने, ध्यान से सुनिएगा, कि भारत में है संपदा, शक्ति और संभावना की भरमार। आपके कुशल नेतृत्व के कारण ही हो रहा है सफल विकसित भारत का स्वप्न, सही दिशा में तेज रफ्तार। महोदय, आपके आगमन, आशीर्वचन और मार्गदर्शन के लिए कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि आभार। क्षमा करेंगे हमें यदि त्रुटि हुई हो कोई, करने में सत्कार, पुनः स्वीकार करे मुंबई पोर्ट का आभार, मुंबई पोर्ट का आभार। और विद्वज्जन, आप सबसे निवेदन है कि आप सभी माननीय मंत्री महोदय के लिए करें करतल ध्वनि, तालियों की बौछार, जोरदार, शानदार, लगातार। आदरणीय श्री नीतीश सिन्हा जी, श्री राजन चौधरी जी, श्री विवेक पांडे, प्रिया गोयल, असलम हसन, अरविंद घुगे, अमित कुमार निकाड़जे, सीमा शुल्क, आप सभी का सहयोग हमको मिलता रहा बेशुमार। सीमा शुल्क विभाग बढ़ा रहा है राष्ट्रीय राजस्व का भंडार। आपकी तत्परता से सरल हुआ मुंबई पोर्ट पर व्यापार, और राष्ट्रभक्ति की मिसाल कायम करते, चाहे हो दयाशंकर या हो बापू लक्ष्मण जमादार, आपको हृदय से करबद्ध आभार, करबद्ध आभार। HPCL, ONGC, BPCL, गेल, एजिस, MGL देश की एनर्जी सिक्योरिटी के है सक्षम सूत्रधार। लंबा रिश्ता रहा है उनसे, साथ रहे हैं हम भागीदार। आप सबको भी सविनय आभार, सविनय आभार। राष्ट्र रक्षा और शिपिंग सेक्टर को देते 250 वर्षों से मजबूत आधार, मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड और श्री बीजू जॉर्ज, आपको भी कोटि कोटि आभार। मेरीटाइम इंडिया विजन 2030 और विकसित भारत विजन 2047 का बड़ा सरल सा है सार। स्मार्ट पोर्ट, डिजिटलाइजेशन और सस्टेनेबिलिटी, इनसे ही होगा राष्ट्रीय विकास का विस्तार। सीडैक, स्टर्लिंग विल्सन, टेक एम, रॉयल बॉम्बे याट क्लब, DNV, MPSF COE और DV पवार, आप सभी भी है साधुवाद के हकदार। आप सभी को अपार अपार आभार, अपार अपार आभार। भारतीय सीमा शुल्क और मुंबई पत्तन के सभी अधिकारी और कर्मी, आप सभी है इस आयोजन की सफलता के सुपरस्टार। यदि मैं किसी का नाम लेना भूल गया हो तो मेरी क्षमा याचना को स्वीकृत करें इस बार। मंच संचालक गिरिराज राठौड़, आपने भी बखूबी निभाया है अपना किरदार, आपको भी आभार। और मीडिया के मित्र, आप खूब करना हमारा प्रचार, आपका भरपूर भरपूर आभार। और एडिशनल सेक्रेटरी श्री राजेश कुमार सिन्हा सर, आपका भी भरपूर आभार। और अंत में माननीय श्री राजीव जलोटा जी, अध्यक्ष मुंबई पत्तन सह इंडियन पोर्ट एसोसिएशन, जिन्होंने कर्मठता और कर्तव्यपरायणता के हमको दिए संस्कार, इस कार्यक्रम के स्वप्न को किया सफलता से साकार। उनके साथ ही आप सभी महानुभावों को पुनः शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवादालु, नंदी, ननरी, धन्यवाद, धोइनबाद, आभार, आभार। हम हैं मुंबई पोर्ट अथॉरिटी, गेटवे टू इंडिया, भारत का द्वार, भारत का द्वार। आपका आभार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और इस आभार प्रदर्शन के लिए करते हैं हम आदेश तीतरमारे जी का आभार। धन्यवाद सर। साथियों, इसी के साथ हम आज के इस समारोह के समापन की घोषणा करते हैं। आप सबकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।